जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम 30 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो ये 30 एमसीक्यूज़ जो है वो 10-10 की सूरत में 3 पोर्शंस में हैं और तीनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मुतल्लिक़ हैं। तो जो पहले 10 एमसीक्यूज़ हैं वो है सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Cordero 1978 argued that gender socialization occurred through. So A is the right answer here. Both boys and girls being closely attached to their mothers, but then boys breaking away. जी बिल्कुल बहुत ही कम उम्री में जब बच्चे होते हैं तो दे आर वेरी अटैच्ड to their mothers because they used to spend much of their time with their mothers. और बॉयज़ भी और गर्ल्स भी दोनों अटैच्ड होती हैं। फीडिंग, केयरिंग सब कुछ उनको मदर से मिलता है बिकॉज मोस्टली द फादर्स आर ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिलीज, सो दे आर नॉट यूजुअली एट होम, सो दे आर क्लोजली अटैच्ड विद मदर्स। बट एक सर्टन एज के बाद जो गर्ल्स हैं वो तो अटैच रहती हैं मदर से, लेकिन बॉयज़ जो हैं दे हैव टू ब्रेक अवे, वो दूर होना पड़ता है टू लर्न मैस्कुलिनिटी बाय देयर फादर्स। तो वो फिर डी अटैच्ड हो जाते हैं मदर्स के साथ और इस तरह से फिर वो अपने फादर से मैस्कुलिनिटी जो है वो सीखते हैं, दैट हाउ टू बी मेल इन सोसाइटी। सो दिस इज़ द वे ऑफ सोशलाइजेशन इन विच we learn to be a male or female. So this was the thesis by Cordero. Okay, the next one. Question number 2. Marxist feminists explain patriarchy in terms of. So C is the right answer here. Women's domestic labor being exploited by the capitalist economy. जी कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं उनके ऊपर बेसिस जो जिसकी हैं फेमिनिज़म की, जो उसके ऊपर जो बेस करता है, तो दीज फेमिनिस्ट्स आर्ग्यू दैट वुमेंस डोमेस्टिक लेबर जो है उसको हमारी जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है वो एक्सप्लॉइट करती है एंड उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती उनके काम के बारे में जो वो काम करती हैं वुमेंस। वुमेन का जो घरेलू जो डोमेस्टिक काम है उसको कंसिडर नहीं किया जाता जो कैपिटलिस्टिक economy here. Okay, the next one, question number 3. Judith Butler 99 suggested that, so D is the right answer here. What she suggested: gender is performed through bodily gestures and styles to create sex. So gender is a social role. Gender we perform being male or female in our society, and on the basis of that performance we are taken as male or female. So sex is a biological biological difference between male and female, but the gender is how we react and how we act in a particular situation in society. So this was the thesis by Judith Butler. So हमारे जो bodily gestures होते हैं at certain times that represent that who we are. So sociologists यही believe करते हैं that biological differences may are physical differences, but the main difference between male and female are their social differences. The construction of gender is social. We learn in society. हमने मेल बनना है या फीमेल बनना है, हम ये सीखते हैं सोसाइटी में। Okay, the next one, question number 4. Women have been, let me clear it. The vegan was not so clear. Okay, women have been excluded from the public sphere because, so these are the reasons why the woman was excluded from public sphere. Industrial capitalism separated the middle class home from workplace. Those who enter paid employment have been
sidelined into particular fields. It is difficult to succeed in mainstream politics without compromising their femininity. जी, मतलब ये है कि जब वुमेन को जॉब्स भी ऑफ़र की गई, लेकिन वो एक सर्टन फील्ड्स थे, तो उसी में वुमेन जो थी वो काम करती थी और उन्हीं में उनको शुमार किया जाता था, और मेल्स के मुकाबले उनको पे भी कम दी जाती थी और मराद भी कम दी जाती थी. सो ये एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की जो सारी हिडन रूल्स थे जो मजबूर करते थे वुमेन की एक्सक्लूजन फ्राम जो भी डोमिनेटिंग उस टाइम पे स्ट्रक्चर था, जो वर्किंग क्लास थी. सो ये वर्ल्ड वार 2 के राउंड अबाउट ये सिनेरियो था. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. द टू सेक्स मॉडल दैट Laqueur 1990 identified. So Laqueur 1990 identified B, distinguished between male and females as separate sexes. Before that was one sex model, and it was considered that male and female are one sex. But after some time, the distinguished roles were found between male and female, and a new model of two sexes was emerged, and that model was given by Laqueur. मेल्स और फीमेल्स में जो फ़र्क है वो पहले जो ट्रेडिशनल हमारी सोसाइटीज़ थी उनमें कंसिडर नहीं किया जाता था. सोशल जो उनमें फ़र्क है, और लेकिन जो है वो सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई तो टू सेक्स मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सोसाइटी. Okay, the next one, question number 6. In the 19th century, homosexuality was understood as, so C is the right answer here, subordinate form of masculinity that threatened compulsory heterosexuality. So at that time in 19th century, it was considered that only heterosexuality is the standard in society, and if a person does not support heterosexuality, he is not a normal person in society, and he is deviating from his position or his role. So it was compulsion by the society for the individuals to be heterosexual, and जो उस टाइम पे जो हमारी होमोसेक्सुअलिटी थी उसको डिस्करेज किया जाता था, एंड इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी कि हम अगर होमोसेक्सुअलिटी को कबूल करेंगे तो जो हमारे मेल्स हैं वो अपनी जो हेट्रोसेक्सुअलिटी जो उनका ट्रेडिशनल रोल है उससे इनहराफ करेंगे, और इस तरह से हेट्रोसेक्सुअलिटी को ना अपनाने की वजह से सोसाइटी का जो एक सिस्टम है उसमें बिगाड़ पैदा होगा. यानी कि वो अगर मेल्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होंगे और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो जो एक मैन पावर चाहिए होती है सोसाइटी को वो कैसे मिलेगी. एंड इट वाज अ सबऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटी. इसको मैस्कुलिनिटी की, मर्दानगी की एक सबऑर्डिनेट फॉर्म कंसिडर किया जाता था एट दैट टाइम इन 19th century. So it was highly discussed social behavior at that time. Okay, the next one, question number 7. The deviant subculture of homosexuals who met in 17th and 18th century London was called the Mollies. B is the right answer here. ये एक हकारत अमेज़ नाम था जो कि होमोसेक्सुअल्स के जो सब कल्चर्स थे, जो होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करते थे लोग, उनको इस नाम से पुकारा जाता था, मोलीज, यानी उनका नाम डाला जाता था. बी इज़ द राइट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 8. द न्यू मैन ऑफ द 1980s was alleged to be, he is the right answer here, sensitive, caring and emotional. The traditional role of male was instrumental
he was breadwinner of a family, and the responsibilities of earning was all related to the male roles, and the expressive roles, being emotional and being caring in family, those roles were associated with women in the family. But in 1980s, the concept of new man was emerged, and introduced. It was introduced that the males are now being sensitive, caring and emotional. यानी कि मेल्स जो हैं वो भी सेंसिटिव, केयरिंग एंड इमोशनल हो रहे हैं अब सोसाइटीज़ में. और इसी तरह फिर उसके बाद 1980s के बाद फैशन इंडस्ट्री, जो मेल फैशन इंडस्ट्री है, वो भी मर्ज हुई. मेल्स को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का परफ्यूम यूज़ करना चाहिए, किस तरह का लुक उनको अपनाना चाहिए. उससे पहले मेल्स का जो रोल था वो उसको यही कंसिडर किया जाता था कि वो जो मेल्स हैं, दे हैव टू बी हार्श, they have to be rude, they have to be rigid, and उनकी जो certain responsibilities हैं रोज़ी कमाने की घर के लिए, वो ही उनकी ज़िम्मेदारी है. बट जो है 1980s में न्यू मैन का कॉन्सेप्ट आया. Okay, the next one, question number 9. Which of these changes did not occur during the sexual revolution of the 1960s? So A is the right answer here. A growing fear of HIV and AIDS fueled by the new right. So new right was the movement, and जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन आया 1960s में, 1960s से पहले जो ज़माना था, वुमेन वर नॉट अलाउड टू अबॉर्ट देयर चिल्ड्रन, एंड उनको उसके बाद बहुत सारी सेक्सुअल फ्रीडम मिली. दोज वर अलाउड टू अबॉर्ट देयर चिल्ड्रन बाय यूजिंग सम ओरल पिल्स, and they were free about their sexual activities, and they were given some rights of divorce also after 1960s. And due to all these freedom and rights, जो न्यू राइट मूवमेंट थी, पॉलिटिकल मूवमेंट, उन्होंने कहा कि ये जो सारा फ्रीडम दी जा रही है औरतों को, उससे because there would be more sexual activities and without marriages, and there would be more chances of patients of HIV and AIDS. So A is the right answer है कि उसका ख़तरा बढ़ गया HIV and AIDS का, ऐसा कहना था न्यू राइट जो सोशल मूवमेंट थी उनका. Okay, the next one, question number 10. Queer theory makes the claim that, so D is the right answer here, all sexualities are pluralistic, fragmented and frequently reconstructed. So ये जो थ्योरी थी, इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो सेक्सुअलिटीज़ हैं, जो डिफरेंट ओरिएंटेशन हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, ये आजकल के जो हालात हैं, जो आजकल का ज़माना है, उसमें वो चेंज हो गए हैं, एंड दे आर अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द करंट सोसाइटी, एंड दीज आर एक्सेप्टेड. ऑल द सेक्सुअलिटीज़ आर बीइंग एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, एंड इट इज़ कॉल्ड द प्लूरिस्टिक सोसाइटी. ओके, द नेक्स्ट वन, रेशियल एंड एथनिक आइडेंटिटीज़. हमारे जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हैं वो रेशियल एंड एथनिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड हैं. ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1. Scientific theories in the 19th century tried to explain race in naturalistic terms. Which of the following ideas was not considered? जब after the success of natural sciences, many of the philosophers tried to impose all the rules of science in social sciences, and they tried to learn human beings in terms of natural science. So उन रूल्स की बेसिस पे जब ह्यूमन बींग्स को स्टडी किया गया, तो रेस को जिन बुनियादों के ऊपर स्टडी किया जाने लगा, उनमें से जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और ब्रेन साइज था. बट हाइट वाज नॉट द फीचर ऑफ दैट स्टडी, एंड दैट
height was not component of that particular set while studying race. Okay, question number 2, ethnic identity refers to, P is the right answer here, a felt sense of group membership on the basis of religion, language or history. G, it's called ethnic identity. Race is more political term and ethnic identity is more scientific term. So मिसाल के तौर पर जैसे इंडियन, आपकी एथनिसिटी कौन सी है, तो अगर कोई कहता है आई एम फ्रॉम इंडियन एथनिसिटी, या कोई चाइनीज़ है तो उसकी जो ओरिजिन है, उसकी लैंग्वेज, उसका कल्चर, सो वो चाइनीज़, उसकी एथनिसिटी चाइनीज़ है. सो ये आपकी ये सारी जो बेसिस है रिलीजन, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री, उसकी बेसिस पे आपकी जो एथनिसिटी है या आपका एथनिक जो ग्रुप है वो डिस्क्राइब किया जाता है. सो बी इज़ द राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3, वार्नर एंड मर्डल claimed that black former slaves were not joining the ethnic melting pot of the North American cities because ethnic melting pot वो जगह तस्वुर की जाती है, वो एरिया तस्वुर किया जाता है, दुनिया का वो हिस्सा तस्वुर किया जाता है जहाँ पे मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोग, मुख्तलिफ रेस के लोग मिलते हैं और एक नया कल्चर बनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को जन्म देते हैं. Okay, so D is the right answer here. The promise of citizenship was contradicted by continued discrimination. जी, जब फॉर्मर स्लेव, जब स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया 1860s में अमेरिका में, और उसके बाद जो नॉर्दर्न अमेरिकन सिटीज़ थे उधर इन्होंने जाना शुरू किया स्लेव ने, जो ब्लैक स्लेव थे. लेकिन मॉडर्न स्लेवरी, जो ट्रेडिशनल स्लेवरी थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जो मॉडर्न स्लेवरी थी वो लोगों के माइंड्स में थी. एंड जो गोरे थे वो कालों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, एंड वो ना होते हुए भी, कानूनी तौर पे ना होते भी हुए भी एग्जिस्ट करती थी स्लेवरी. ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरीज ऑफ racialized discourse suggest that, B is the right answer here, the idea of race is socially constructed through powerful ideologies. जी बिल्कुल, racialized theories suggest that कि जो हमारी रेस है, काला कौन है, गोरा कौन है, इंडियन कौन है, चाइनीज़ कौन है, ये जो रेस का जो आइडिया है वो एक पॉलिटिकल आइडिया है और मुख्तलिफ जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो उन आइडियोलॉजीज़ के हामी हैं, वो ये रेस का जो आइडिया है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं. मिसाल के तौर पे जैसे हिटलर था, तो हिटलर का कहना था कि जो जर्मन है वो सबसे सुपीरियर है, और उसी जो उनकी सोच थी उसकी बुनियाद पे वर्ल्ड वॉर 2 ने जन्म लिया. और इसी तरह से जो ब्रिटिश थे वो भी अपने आप को सुपीरियर मानते थे और आज भी मानते हैं, और इस तरह से जो गोरे हैं वो भी अपने आप को सुपीरियर मानते हैं. सो इट्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल ambitions behind making all this stratification of races. Okay, the next one, question number 5. After slavery was abolished in USA and British Empire, policymakers claimed that former slaves migrating to these cities would experience, so A is the right answer here, assimilation. They believe that they will be assimilated into the current culture and they will produce a new culture. The dominant culture would be dominant there. But ये सच नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था. स्लेवरी के बाद भी जो गोरे थे उन्होंने कालों को एक्सेप्ट नहीं किया था. Okay, the next one, question number 6. Warner's study of the city of Natchez in the American Deep South showed that color line there was. So D is the right answer here. A sharp division between black and white castes underpinned by beliefs about their superiority. जी, जैसे मैंने पहले बात की कि सोशल साइंटिस्ट्स ने कहा था कि अब स्लेवरी ख़त्म हो गई है तो अब काले गोरे जो मेजॉरिटी इलाके हैं उधर जाएंगे, उनके साथ रहेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस अ न्यू कल्चर ऑफ हार्मनी
बट दे वर फेल्ड इन देयर थीसिस एंड वैसा नहीं हुआ, गोरों ने कालों को एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेट माइग्रेशन ऑफ 1916 and 19 meant that Chicago became an ethnically diverse city. The consequence of this was 1916 and 1919 में बहुत सारे जो काले लोग थे, the Negroes, they were moved to Chicago City। और शिकागो सिटी जब मूव की है तो बहुत सारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका बिलीव था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि शिकागो वुड बी एथनिक मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी एथनिक मेल्टिंग पॉट, और सारे लोग यहाँ पे मिलके एक नया कल्चर को जन्म देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। मोस्ट एथनिक ग्रुप्स वर इंटीग्रेटेड इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी वर बट द ब्लैक पॉपुलेशन रिमेन्ड इन द सिटीज गेटोस। जी बिल्कुल, अक्सर जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स थे वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन गए, बट जो काले थे उनको स्लम्स में, कच्ची आबादियों में और गरीब इलाकों में जो अलग इलाके थे साइड लाइन हो के रहना पड़ा, एंड वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सके। ओके, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो थी दैट रिमेन्स देयर इन शिकागो। ओके, द नेक्स्ट वन, इन पैटरसन्स स्टडी ऑफ ब्रिक्सटन इट वाज फाउंड दैट ऑल ऑफ द अबव डी इज़ द राइट आंसर है। क्या क्या मिला था वहाँ, क्या क्या पता चला? ब्लैक एंड वाइट रेजिडेंट्स competed for economic resources. African Caribbean migrants were concentrated in the poorest and most expensive housing. जी, सबसे गरीब तरीन इलाकों में अफ्रीकन कैरेबियन लोग रहते थे, एंड वाइट वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ रिजेंटेड द अराइवल ऑफ ब्लैक फैमिलीज़। जी, उनको ये पसंद नहीं था ब्लैक फैमिलीज़ का उनके सिटी में आना। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यू racism refers to a subtler form of prejudice masked by nationalist pride। जी बिल्कुल, न्यू रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि 1980s के बाद ये कॉन्सेप्ट आया, और इसका मकसद है कि जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, यानी कंट्री वाइड जो अपने वतन के साथ प्यार है और वतन की सुपीरियरिटी है, दैट अमेरिकन्स जो कहते हैं कि हम अमेरिकन्स हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, बट दे फील प्राइड एज दे आर अमेरिकन। सो ये न्यू रेसिज्म कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द मैकफरसन रिपोर्ट हाईलाइटेड द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ, यह गवर्नमेंट की एक रिसर्च थी जो कि कंडक्ट की गई थी। Institutional racism, systematic forms of disadvantage built into the routines and practices of social institutions। जी, एक hidden culture, एक hidden discrimination was constructed in the minds of people and in minds of working officers in different institutions। मिसाल के तौर पर जैसे जो ब्लैक हैं, एक ब्लैक जो मर्डर जिसका हो गया था अमेरिका में, एंड पुलिस ने उसको कैजुअल लिया था। क्यों कैजुअल लिया था? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन है, इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके माइंड्स में ये बिल्ट इन हो चुका है उन इंस्टीट्यूशंस में, और इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाले जो लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इदारे हैं, सब डिस्क्रिमिनेट करते हैं अमेरिका में। ओके, द नेक्स्ट वन, क्राइम एंड डेवियंस से अब जो नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 1, लम्ब्रोसो, सीजर लम्ब्रोसो की बात हो रही है। सीजर लम्ब्रोसो claimed that C is the right answer here. Biological failings drove some people into crime। जी, biological faults in human body and human beings वो क्राइम को जन्म लेते हैं। टेढ़े मेढ़े जिनके सर, कुछ ख़ास तरह के बाल और उनकी चौड़े इनके चेहरे होते हैं, वो ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा कहना था सीजर लम्ब्रोसो का। एंड हिज थीसिस वाज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्राइम। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अ डेविएंट एक्ट
is normalized. It is. Which is the right answer here. Seen a temporary aberration from an otherwise normal character. डेविएंट बिहेवियर वो होता है जिसको लोग नॉर्मल नहीं कंसिडर करते, बट यूजुअली जब फर्स्ट टाइम क्राइम होता है या डेविएंसी होती है तो समटाइम्स जो लोग हैं उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं और जो उनका पहले से नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है उसको टेम्परेरीली भूल कर, ताकि जो ऑफेंडर है वो सेकेंडरी डेविएंस जो है वो ना शो करे, उसको सुधारने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द सेकेंडरी डेविएशन रेफर्स टू, इसमें डी इज़ द राइट ऑप्शन है और इसमें ये तीनों फैक्टर्स हैं। द पनिशमेंट और स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ डेविएंट एक्ट्स, पनिश करना किसी को, उसके ऊपर लेबल लगा देना, वो तो है ही ऐसा, फिर वो करेगा, दूसरी दफ़ा दोबारा करेगा, सेकेंडरी डेविएशन होने का ख़तरा होगा, दोबारा से क्राइम कमिट कर सकता है, डेविएट कर सकता है। द लेबलिंग ऑफ एन एक्ट एज डेविएंट थ्रू सोशल रिएक्शंस टू इट, अगर वो जेल से पनिश होकर वापस आ गया है उसको उसका मजाक उड़ाना, तो वो फिर दूसरी दफ़ा भी वो क्राइम कर सकता है। द वेज इन विच टेकिंग ऑन अ डेविएंट रोल्स अफेक्ट्स फ्यूचर एक्शन, जी मुख्तलिफ इस तरह के रूल्स ले लेना जो कि उसके फ्यूचर जो एक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करें। वो बहुत सारे जेल में रह के वो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे बना सकता है और वो कॉन्टैक्ट्स उसको सेकेंडरी डेविएशन पे मजबूर कर सकते हैं। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट वन, Sutherland's study of professional thief suggested that he is the right answer here. People are socialized into life of crime by associating with others who define it in positive terms. जी बिल्कुल, के मुख्तलिफ़ कबीले होते हैं, मुख्तलिफ़ इलाके होते हैं, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा बच्चा वहाँ का क्रिमिनल होता है, उनकी दिहाड़ी ही इस तरह से स्टार्ट होती है कि वो नौसरबाजी करने सुबह निकल जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो ये उनका कल्चर है, वो सीखते हैं, ये एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। एंड उनको बताया जाता है कि क्राइम इज़ समथिंग विच इज़ फंक्शनल फॉर देम एंड इट इज़ मीन ऑफ इनकम फॉर देम। सो जब उनको पॉजिटिव टर्म में बताया जाता है वो साथ रह के सीखते हैं क्राइम। और ये सदरलैंड की स्टडी है अबाउट सोशलाइजेशन जो कि क्रिमिनल लाइफ को जन्म देती है। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, द वर्क ऑफ स्मार्ट वाज अ साइंटिस्ट suggested that women's criminal behavior tended to reflect traditional gender roles। जी इनका कहना था कि जो वुमेन जिस तरह के क्राइम करती है वो उसके जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उससे बड़ी ममासलत रखते हैं वो जो क्राइम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर खाना चुरा लेना किसी ग्रोसरी स्टोर से, खाने का राशन किसी स्टोर से चुरा लेना या प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होना, तो इसके जेंडर रूल्स के साथ, उसका ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स के साथ बड़ा ताल्लुक़ है। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, वाइट कॉलर क्राइम इज़ लो in visibility because it goes undetected in the context of everyday business transactions. D is the right answer here. White collar crime वो लोग करते हैं जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और बिजनेस या अपने ऑफिस डिपार्टमेंट वगैरह की आड़ में वो चूना लगाते हैं, फ्रॉड करते हैं, एम्बेजलमेंट करते हैं, क्राइम करते हैं। सो इट्स कॉल्ड वाइट कॉलर क्राइम। So question number 7, Becker proclaimed that cannabis use was, B is the right answer here, learned gradually through the social processes of a deviant career। जी, नशे का आदी बनना, नशा करना सीखा जाता है और स्पेशली कैनाबिस के ऊपर बात की थी बेकर ने। तो इसकी सर्टन स्टेजेस होती हैं। दोस्तों से पहले कभी कभी लोग लेते हैं टू फील फन, उसके बाद ये रेगुलर शुरू हो जाता है और फिर प्लेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक लर्नड प्रोसेस है, ये कहना था बेकर का।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बना बेल आइकॉन प्रेस कर दें। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, पैटर्न्स ऑफ ड्रग यूज इन ब्रिटेन रिवील दैट it has increased and is no longer confined to hedonistic youth subculture. Previously it was considered that these activities of drug abuse, these are related to youth and it's a subculture of youth who are related in such activities, but nowadays जो सारे उनकी एज ग्रुप्स के लोग हैं, they are being involved in ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग जो है वो मिल भी आसानी से जाती है। सो पैटर्न्स ऑफ ड्रग यूज़ इन ब्रिटेन रिवील दैट कि अब ये चेंज हो गया है, किसी एक ख़ास एज ग्रुप का, किसी एक सब कल्चर का ये हिस्सा नहीं रह गया। अब हर कोई, तकरीबन हर क्लास से लोग जो हैं, हर क्लास से, हर ग्रुप से लोग जो हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, क्राइम एंड डेविएंस में द माफिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बी इज़ द राइट आंसर है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसमें लिंक्स होते हैं, पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं, मिनिस्टर्स तक, मुल्कों तक लिंक्स होते हैं, अंडरवर्ल्ड होता है और एक ऑर्गेनाइज्ड टीम होती है जो कि इंटरनेशनली और नेशनली क्राइम्स कमिट करती है। तो इसमें सिसिलियन माफिया और शिकागो के जो मुख्तलिफ इटालियन माफिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स जो शिकागो में जाके उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स किए थे। ओके, द लास्ट वन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ टेररिज्म डिफरेंट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ क्राइम डिस्क्राइब्ड बाय द शिकागो स्कूल ऑफ थॉट। आई डिडंट, इन्होंने नहीं लिखा थॉट बट आई इंक्लूडेड शिकागो स्कूल ऑफ थॉट क्योंकि इसको यही पढ़ा जाता है। इट इज़ वेरी फेमस स्कूल ऑफ थॉट इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। सो ये 3 ऑप्शंस दुरुस्त हैं, ऑल ऑफ द अबव। डी इज़ द राइट आंसर हियर। इट इज़ कमिटेड ऑन अ लार्जर, ऑफन ग्लोबल स्केल and is well organized. B, it is associated with political conflict between states and their citizens. It can have far-reaching effects upon international relations. जी बिल्कुल। 9/11 का वाक़या किसने कराया, ये बहस है, ये आज तक सॉल्व नहीं हुई, लेकिन जिसने भी कराया दैट वाज अ टेररिस्ट एक्टिविटी और उसके असरात देखें पूरी दुनिया पे। उसके बाद जो ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था दैट वाज चेंज्ड, दुश्मन दोस्त बन गए और दोस्त दुश्मन भी बने, और सारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल वारफेयर थी दैट वाज चेंज्ड ड्यू टू दैट वन इंसिडेंस। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। जी, अल्लाह हाफिज़।